یہ کہانی اتنی آسان اور سادہ نہیں ہے، یہ انٹچیبل لوگوں کی کہانی ہے۔ جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہ چھوا جائے نہ میرے خلاف بات کی جائے، جتنا چلاؤ گے اتنا سچ ہوگا۔ کون ہے یہ چیما؟ پس پردہ حقیقت کیا ہے؟ تو یہ چیما صاحب ہیں جی، ایف آئی اے کے آفیسر۔ کیا محسن نقوی اس معاملے میں کود پڑے؟ کیا لگتا ہے محسن نقوی صاحب ایکشن لیں گے؟ ایف آئی اے ان سے یہ ایک اشتہاری مہم ہے۔ یونیفارم اتار کے کھڑے ہونا بھائی، آپ ایف آئی اے کا یونیفارم۔ اصل سیاست ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے۔ جواد جیسا حال کیوں؟ کون جواد؟ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ مرد کے بچے بنو اگر فالوور عمران خان کے۔ آپ نے یہ کہانی دیکھی ہوگی، کچھ لوگ اسے حادثہ قرار دے رہے ہیں، کچھ لوگ اسے ایک ڈرامہ قرار دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سارے حقائق کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ ذرا سا دیکھتے ہیں، لیکن ان سب سے پہلے آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈرنا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اقرار الحسن وہ نام کے جو شہرت کی بلندیوں پر اس لیے پہنچا کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ بنو نا یار، میں لفظ استعمال کرتا ہوں دعویٰ کرتا تھا، اس میں لوگ بے نقاب کم ہوتے تھے، لیکن تشہیری مہم اس حد تک ہوتی تھی کہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ جیسے نظام تبدیل ہونے والا ہے، اور اس نظام کی تبدیلی کا آغاز سن 2011 اور 12 کے اندر ARY کے ایک پروگرام کے ساتھ آپ کو نظر آیا۔ واقعہ ہوا ہے اقرار یوں لگنے لگا کہ جیسے اقرار الحسن بالکل ہر جگہ بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں اور چلاتے ہیں اور وہ اپنی بات کو منوا کر رہتے ہیں، وہ سامنے والے کو غلط تصور، غلط بالکل اس کی پکچر کو سامنے لے کر آتے ہیں اور سچ اور حق، لیکن در حقیقت کہانی ایسی نہیں ہوتی۔ سازش ایسے نہیں بنتی جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ جو کہانی آپ کو اسکرین پر نظر آتی ہے، در حقیقت اس کے پس پردہ بہت سارے حقائق ہوتے ہیں، جس طریقے کی یہ کہانی آپ کے سامنے آئی ہے۔ ریزائن کرو، پھر باہر کھڑے ہو کے 10 بار گالیاں دو، ہم جواب دیں گے آپ کو، لیکن امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے آفیشیل یونیفارم پہن کے ایف آئی اے کا ستارہ لگا کے کوئی حق نہیں ہے۔ بظاہر آپ کو اس کہانی میں اگر آپ اس پوری ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے تو ایسا لگتا ہے کہ اقرار الحسن ایک باہر کہیں جا رہے تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھے، اور پھر اس فیملی کے ساتھ موجود میں جب وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں، امیگریشن ڈپارٹمنٹ ایف آئی اے کا وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ ویزا ٹھیک ہے، تمام چیزیں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسے گو ہیڈ دے دیا جاتا ہے۔ یہاں کہانی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایف آئی اے کے اہلکار ہوتے ہیں۔ جب کچھ لوگ وہاں پر امیگریشن کے ڈپارٹمنٹ کے پاس یعنی کہ اس کیبن کے پاس جب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اقرار الحسن کا آٹوگراف یا ایک سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو دو لوگ جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں آپس میں کہ یہ ابھی تو بہت زیادہ اپنے آپ کو ہیرو تصور کر رہا ہے، لیکن اس کا انجام جواد احمد کی طرح ہوگا۔ ایف آئی اے کا یونیفارم پہن کے آفیشیل کیپیسٹی میں کھڑے ہو کے یہاں ریاست کو بالکل دیجئے، ہمیں بھی اختلاف ہے دسیوں طرح کے، لیکن آفیشیل کیپیسٹی میں یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ مرد کے بچے بنو اگر فالوور عمران خان کے، اس ریاست سے ٹیکس لینا بند کرو، یونیفارم اتارو، ریزائن کرو، پھر باہر کھڑے ہو کے 10 بار گالیاں دو، ہم جواب دیں گے آپ کو، لیکن امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے آفیشیل یونیفارم پہن کے ایف آئی اے کا ستارہ لگا کے کوئی حق نہیں آپ کو کہانی کو پہلے یہاں روکتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر یہ جواد احمد کون ہے۔ جواد احمد کو اگر آپ عام طور پر دیکھیں تو وہ مختلف آپ کو ٹی وی اسکرینز پر نظر آتے ہیں، ایک معروف سنگر ہیں، لیکن ان کے پس پردہ ایک کہانی بھی ہے۔ جواد احمد اپنے آپ کو عمومی طور پر سوشلسٹ قرار دیتے تھے، یعنی جسے لفظ استعمال ہوتا ہے سرخا۔ انہوں نے ایک جماعت بنائی اور ان کی جماعت بنی، اس جماعت کا نام تھا برابری پارٹی، اور آپ کو مختلف رکشوں کے بیک پر ایک زمانے میں یہ تصویر نظر آتی تھی اور جس میں کہا جاتا تھا روٹی، کپڑا اور مکان، اور پھر اس کے
बाद बराबरी पार्टी का लिखा होता था और उसमें जवाब की तस्वीर होती थी। आमतौर पर इनकी शोहरत इस हवाले से हुई क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ पर बड़ी कड़ी तनकीद की, और ज़ाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ पर बड़ी कड़ी तनकीद करने वाले लोग आमतौर पर काबिल कबूल नहीं होते। जवाद अहमद का फ़र्क यह है कि जवाद अहमद ने जिस ज़माने में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अपनी बात करना शुरू की, उस ज़माने में जवाद अहमद को इतना पसंद नहीं किया जाता था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। जवाद अहमद इमरान खान के उरूज के वक्त की पैदाइश है, जबकि इसके बरअक्स अगर इकरारुल हसन की मिसाल ली जाए तो इकरारुल हसन उस वक्त की पैदाइश है कि जब इकरारुल हसन का वक्त उस वक्त आता है कि जब इमरान खान का जवाल शुरू हुआ। उससे पहले ARY में रहते हुए ऐसे कई बातें और खुद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको बेतहाशा चीजें ऐसी मिलेगी जो उस वक्त इमरान खान की मुकम्मल हिमायत करती थी। यहाँ तक कि कराची में जब NQM के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था और जब यहाँ पर एजेंसियां मुख्तलिफ लोगों को पकड़ रही थी, तो उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है ये वही लोगों में शामिल थे जो कहते थे कि कुछ तो किया होगा। तो अगर इन दोनों में एक फर्क को महसूस किया जाए तो जवाद अहमद के पीछे उस वक्त उनके खिलाफ थी इस्टेब्लिशमेंट, या उनकी उस तरह से सपोर्ट में नहीं थी, और उस वक्त मुकम्मल सपोर्ट थी इमरान खान को हासिल। तो दोनों के वक्त का तयन बहुत ज्यादा अहम है। जवाद अहमद इमरान खान की मुखालफत में उस हद तक कामयाब नहीं हो सके, कई टॉक शोज में उनके साथ बदतमीजी भी हुई और दीगर चीजें भी हुई। ये हो गई जहां तक की कहानी कि जब उन्होंने उसे जवाद अहमद से तशबीह दी। तो दोनों की तशबीहात में जरा सा फर्क है। फिर क्या होता है, असल कहानी हम अब आपको सुनाते हैं कि उसके बाद होता क्या है। हुआ ये कि जब वो आपस में बात कर रहे थे तो ये बात इकरारुल हसन को बहुत ही नाजेबा गुजरी और उन्होंने फौरी तौर पर अपना मोबाइल ऑन किया और मोबाइल ऑन करके पहले रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर। इट मीन्स कि उनको मालूम था कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये बिल्कुल ऐसा अमल है कि जिसमें कोई मुदाखलत शामिल नहीं थी और फौरी तौर पर उन्होंने उसका रद्द-ए-अमल दे दिया और उनको ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि उन्हें जवाद अहमद की तरह क्यों तशबीह दिया गया। अब जवाद अहमद के साथ तशबीह देने का मतलब है, ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान के खिलाफ उनकी वो आवाज़ बुलंद नहीं हो सकी और नौजवान उसकी तरफ राग़िब ना हो सके, तो दर हकीकत उन्हें एक नाकाम सियासी शख्स या नाकाम सियासी जमात करार दिया जाता है अमूमी तौर पर आम लोगों की ज़हन में। तो इकरारुल हसन को ये बात बुरी लगी। अगर ये बुरी लगती तो वो फौरन रद्द-ए-अमल देते और रद्द-ए-अमल के वक्त अपने मोबाइल को ऑन नहीं करते। इकरारुल हसन अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स के दौरान और अपनी ARY के दौरान इस हद तक चीज़ों को समझ चुके हैं कि कब उन्हें मोबाइल अपना ऑन करना है। बहरहाल उन्होंने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया चीमा साहब पर, कौन चीमा, अब आते हैं इस कहानी पर। चीमा साहब एक ये अभी वाकया हुआ है, इकरारुल हसन भाई मौजूद थे इमिग्रेशन पे और लोग उनसे मिल रहे थे, तो ये चीमा साहब हैं जी FIA के ऑफिसर। ये मनाजिर आप देखिए, तो उन्होंने कोई FIA में मुलाजमत करते हैं, वर्दी में मौजूद थे, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में होते हैं और उन्होंने वहां पर अपनी बात को ये बात उन्होंने कही थी। तो जाहिर सी बात है ये चीमा साहब वहां पर मौजूद थे। अब कहानी का आता है दूसरा रुख और दूसरा बड़ा ही अहम रुख आता है। जब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो चिल्लाना कर उन्होंने कहा कि जनाब, पहली बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वो सब इस बात का नोटिस ले और मोहसिन नकवी ले। हैरत अंगेज तौर पर वो क्यों नोटिस ले, आर्मी चीफ की नोटिस ले, मोहसिन नकवी की नोटिस समझ में आता है। इन्होंने अपना मुद्दा क्या रखा, इन्होंने अपना मुद्दा ये रखा कि भाई एक वर्दी में मलबूस शख्स क्यों सियासी तबसरे कर रहा है। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया कि एक वर्दी में मलबूस शख्स क्यों सियासी तबसरे कर रहा है, और ये दर हकीकत एक यूथिया है। जो इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूथिया, अपने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। तहरीक इंसाफ के वो सपोर्टर के जो बहुत ज़्यादा इमरान खान के चाहने वाले उनकी बात को मनोमन तस्लीम करते हैं, उन सब के लिए आमतौर पर उनके मुखालिफ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यूथिया। तो यहाँ पर दो बातें बड़ी है माई। एक तो बात उन्होंने वर्दी में मलबूस शख्स की सियासी जुमला इस्तेमाल करने पर एतराज किया और दूसरा जो है वो उन्होंने उसे यूथिया करार दिया और फिर कहा कि जनाब अगर इसे वर्दी उतार कर ये सियासत में आ जाए फिर अपना यूथियागिरी करे। वो जो कुछ भी उन्होंने कहा वो रद्द-ए-अमल आप सुन रहे हैं।
अब आपने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है सुन लिया और इस सारी बात को अब आपने ज़हन में बिठा लिया होगा। तो पहली बात तो ये कि जब ज़ाहिर है आप सियासत में आते हैं तो फिर उसके बाद आपके मुखालफिन भी होते हैं और मुखालफिन आप पर कड़ी तनकीद करते हैं। आप माने या ना माने तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत के लोग काफ़ी तादाद में मौजूद है और वो अपने मुखालफिन को इसी तरीके से लेते हैं। मिसाल के तौर पर ताहिर अशरफी साहब पिछले दिनों लंदन में थे और लंदन में जब वो एक सड़क से गुजर रहे थे तो उनके साथ भी बिल्कुल हूबहू ऐसा ही वाकया रोनुमा हुआ और उनके साथ भी यही सलूक किया गया। मामला दर हकीकत ये है कि जब हम इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह का माहौल जनरेट करते हैं तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने आती रहती है। अब मामला ये था कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि ये रद्द-ए-अमल इनका बिल्कुल ही स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद था तो ऐसा नहीं था, वरना ये मोबाइल इस तरह से नहीं होता। अब उन्होंने अपने इसी रद्द-ए-अमल की बार-बार वज़ाहत की अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। आम तौर पर जब कोई सेलिब्रिटी बन जाती है, कोई बड़ी सियासी या ताकतवर शख्सियत बन जाती है, जब उसके साथ तस्वीरें खींचने लग जाती है, तो वो ये समझता है कि वो अनटचेबल है। अनटचेबल का मतलब है कि लोग उस पर तनकीद ना करें, कोई इदारा उसको छुए ना, कोई उसकी मुखालफत में बात ना करे, वो उसे बिल्कुल ही साफ सुथरा और नेक और पासा इंसान समझकर बयान किया जाए। तो ये जो आमतौर पर सूरत हाल होती है उसी का ये शाखसाना है। तो दोनों बातें ज़हन में रखिएगा। इकरारुल हसन ये समझते हैं कि वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखते हैं और वो ये समझते हैं या बल्कि उनका ये गुमान है कि शायद उन्हें वोट भी मिल जाएंगे, लेकिन उनसे बड़ा गुमान उनको ये है कि शायद पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के उन्हें किसी भी जगह पर बड़ी सपोर्ट कर सकते हैं। अब वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये एक अलहदा बहस है, लेकिन इस वक्त इकरारुल हसन साहब के साथ जो कुछ भी हुआ वो प्री प्लान नहीं था। अलबत्ता इकरार ने जो उसका जवाब दिया वो बिल्कुल प्री प्लान था। तो आंखें खोल कर जिए और ज़रा समझिएगा कि सूरत हाल क्या है। रद्द-ए-अमल जब आप सियासत में होते हैं तो फिर आपको अवामी रद्द-ए-अमल कहीं पर भी अपने मुखालफिन की तरफ से किसी जगह भी मिल सकता है। उस सूरत में आप अनटचेबल नहीं रहते क्योंकि ये अवाम है, और अगर आप अवामी राज नाम की पार्टी बनाते हैं तो फिर अवाम इसी तरह राज करती है।